सफलता की यात्रा की बात करेंगे। और हंसाबेन गए हैं, हंसाबेन दिलीप भाई पटेल, आप महसाणा से हैं। और हंसाबेन ने जो नहरें हैं, नहरों का जो प्रबंधन है, जो टेन एंडर को पानी नहीं मिलता है, हंसाबेन ने उसमें बड़ा काम किया है, टेन एंडर्स को पानी पहुंचाया है और महिला शक्ति का उसमें बहुत अच्छे से बखूबी प्रयोग किया है, लीडरशिप प्रदान की है। अच्छा, वो भी अपनी बात करेंगी। वो विसनगर गुजरात से है। और अंत में जो है बालूबेन, हमारी बालूबेन दाबी, आप जो है वेसावर भावनगर से हैं, गुजरात से। कोस्टल एरिया है उनका, खारा पानी समुद्र का उनके अंदर खेतों में आ रहा है, कुओं में आ रहा है। और 20 साल पहले उन्होंने एक शुरुआत की कि इसको कैसे रोका जाए, मीठा पानी कैसे सबको पीने का पहुंचाया जाए। एक भगीरथी प्रयास है करीबन 150 गाँव में 2700 महिलाएं उनकी कोऑपरेटिव में है और 4000 महिलाएं हैं उनके समर्थन महिला समूह में है। वो अपनी यात्रा हमारे साथ में शेयर करेगी। मैं 2 मिनट में तो आती हूँ। हम शुरुआत करते हैं पायल बेन से। पायल बेन, आप उसी गांव में रही, वहां पर आपका विवाह हुआ, आपका परिवार है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि जिस गांव में आप रहे हैं वहां पर आपके ज्ञान का, आपकी जानकारी का कोई उतना कोई है ना मोल नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हमारे गांव की बेटी या बहू है, ये क्या करेगी। तो इस जो परंपरागत जो ये हमारी समस्या है, उसका आपको भी सामना करना पड़ा क्या कहीं पर? तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हम सबको। મારું નામ પટેલ પાયલ, હું મહેસાણા જિલ્લાની ઊંઝા તાલુકામાં ભણાવ ગામની વતની છું। ડીએસસી સંસ્થામાં 2 વર્ષથી કામગીરી કરી રહી સીઆરપી તરીકે, અને એમાંય જળ સુરક્ષા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આ જળ સુરક્ષા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કામગીરી કરવા મને આપ્યું તો મને ખૂબ એમકા આનંદ થયો કે આપણા ગામમાં અને ગુજરાતમાં જે પાણીની અછત, પાણી ઓછું હોય એના વિશે કામગીરી કરવાની છે। તો મારા ગામમાં જ્યારે આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ તો ગામની સ્થિતિ, પહેલી તો ગામની સ્થિતિ જાણવી પડે કે આપણા ગામની સ્થિતિ શું હોય। તો એને જાણવા માટે મેં એક મારો નિર્ણય હતો કે વોટર બજેટ તૈયાર કરું। જો વોટર બજેટ તૈયાર કરું તો ગામની સ્થિતિ લોકોને સમજ પડે કે આંકડાકીય માહિતી હોય તો જ ગામ લોકોને ખબર પડે કે આપણું પાણી આટલું ઘટ પડી રહી છે। તો એના માટે મેં ગામમાં વોટર બજેટ બનાવવાની એક નક્કી કર્યું। તો વોટર બજેટ બનાવવા માટે જે ગામમાં મને તકલીફો બહુ બધી પડી, જ્યારે આંકડાકીય માહિતી લેવા આપણે કોઈ સંસ્થા હોય કે ગવર્મેન્ટ હોય કે પ્રાઇવેટ હોય, તો સંસ્થામાં આંકડા લેવા જઈએ ત્યારે ત્યાંના કર્મચારી શું કહે, બેન તમારે શું કામ હોય, આંકડાકીય માહિતીની કોઈ જરૂર તો હોય નહીં। પણ મેં એમને સમજાવ્યા કે જો આંકડાકીય માહિતી હશે તો જ લોકોને ખબર પડશે કે આપણો આટલી પાણીની અછત છે। એટલે પછી એમને સમજાઈ અને એમના જોડેથી આંકડા લીધા, પંચાયતનું લીધા, પ્રાઇવેટ ગામની કોઈ સંસ્થાઓ એના લીધા। પછી એક આવક માટે હતી, એમાં વરસાદી આંકડા, તો વરસાદી આંકડા માટે આપણા ગામમાં કોઈ એવું સ્ટ્રક્ચર હોય તો ગામ લોકોને ખબર પડે કે આપણા ગામમાં કેટલો વરસાદ પડ્યો। પહેલા તો જિલ્લામાં આપણને ખબર પડતી કે આખા જિલ્લામાં આટલો વરસાદ પડ્યો। હવે આપણા ગામમાં જે રેન ગેજ મૂકવામાં આવ્યા હોય તો રેન ગેજ દ્વારા આપણે દરરોજ જે 4 મહિનામાં ચોમાસામાં વરસાદ પડ્યો એના રોજના રોજ 24 કલાકે ડેટા લઈ અને ગામના ગ્રુપમાં મૂકીએ તો ગામ લોકોને ખબર પડે કે આપણા ગામમાં આ દિવસે આટલો વરસાદ પડ્યો। તો એ 4 મહિનાનો આંકડા એકત્રિત કરી અને વરસાદના ડેટા એમ કરીને વોટર બજેટ તૈયાર કર્યું હતું ગયા વર્ષનું। તો આપણા ગામમાં વરસાદના ડેટા ગણીએ, આ વોટર બજેટ જો આપણું પાકું સર્વેયું કરીએ તો આપણને આવક હતી ગયા વર્ષની 4,41,136, જાવક હતી 5,01,567, એમાંથી -60,431 ની પાણીની ઘટ ગામમાં પડી। તો આ પાણીની ઘટ જો ગામ લેવલે મોહલ્લા મીટિંગો કરી અને ગામમાં અમે આ વોટર બજેટ ગામ લોકો સામે સમક્ષ કર્યું, ગ્રામ સભામાં કર્યું, પંચાયતમાં। પછી અને આ જે ઘટ હતી એને પૂરી કરવા માટે અમે WSP બનાવી, વોટર સિક્યુરિટી પ્લાન કર્યો કે આપણા જે આ ઘટ એને પૂરી કરવા માટે આપણે શું કરીશું। ખેડૂતોના જોડે
સૌથી વધારે પાણીનો વપરાશ શેમાં થતો હતો? કૃષિમાં થતો હતો. તો કૃષિના જે ખેડૂતો ગામમાં હતા, તો ખેડૂતો જોડે મીટિંગ કરી અને અમે ગામમાં પૂછ્યું કે કેટલા ખેડૂતો કઈ પદ્ધતિ અપનાવશે, કે આ ઘટ પૂરી કરવા માટે આપણે ઓછા પિયતમાં કઈ પદ્ધતિઓ કરીશું, કે ઝડપી પાકની પસંદગી કરીશું, પાકની ફેરબદલી કરીશું, મોડેલ ફાર્મ બનાવીએ તો આપણે પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરી શકીએ. તો પછી અમે વોટર સિક્યુરિટી પ્લાન બનાવ્યો. પછી એના પછી જો આ 12 મહિનામાં અમે ફરીથી વોટર બજેટ તૈયાર કર્યું. ગયા વર્ષે બનાવ્યું એ રીતે જ અમે બનાવ્યું અને અમને વકડાતે માહિતી પણ ઝડપી રીતે મળી રહી. પછી આ વર્ષનું વોટર બજેટ ફરીથી બનાવ્યું. તો એમાં આવક હતી 4,64,348, સામે જાવક હતી 5,16,918. એમાં માઇનસ કરીએ તો 52,570 થયા. હવે એ જે ગયા વર્ષનું અને આ વર્ષનું કરીએ તો એમાંથી 7,861 પાણીની બચત આપણે કરી. ટેન્કર જે બચત હતી એ અમે ગામના લોકોને અલગ અલગ પદ્ધતિઓ દ્વારા, જે કપાસ હતા એમાં થોડું વધારે વાવેતર કરાય, સૌથી વધારે કપાસ, પછી રાયડો, અજમો, આ બધા પાકોમાં પાણીની ઓછો ઉપયોગ થાય એવી પાકોની પસંદગી કરી. અને સામે અમે ગામમાં એક મારા જ ખેતરમાં એક મોડેલ ફાર્મ તૈયાર કરી અને ખેડૂતોને ત્યાં મીટિંગો કરી. જો બાગાયતી પાક અને આપણે જો કાયમી પાક કરીએ એક સિઝનનો પાક આપણે ઘઉંનું વાવેતર એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો ઘઉંમાં ઓછામાં ઓછા 6 થી 7 પિયતની જરૂર પડે. એમાં 7 પિયતે કરીએ તો 30 કલાક પાણી જાય. અને સામે બાગાયતી મોડેલ ફાર્મ તૈયાર કરીએ તો આપણને સરેરાશ આવક તો એના જેટલી જ મળે. મોડેલ ફાર્મમાં ઓછામાં ઓછા 4 મહિનામાં 10 થી 15 કલાક જ પાણી જાય. તો પણ મિનિમમ 20 થી 25% પાણીનો વપરાશ થાય. પેલામાં જો 30 કલાક પાણી જતું એ જગ્યાએ એમાં 15 કલાક પાણી જાય. તો આપણે પાણીની બચત એમાં પણ થાય અને ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થાય અને ખેડૂતોને ત્યાં મોડેલ ફાર્મ ઉપર લઈ જઈ અને મીટિંગો અમે પણ કરીએ છીએ. मैं कुछ बहुत अच्छा तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में हिंदी रूपांतरण करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार सरकारी अधिकारियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपका क्या मतलब है, क्या करेगा. तो उन्होंने कहा कि पानी की कमी है साहब. तो जब कमी है तो हम देखना चाहते हैं कि कमी कहाँ से है. बारिश से कमी है कि जमीन के अंदर से है कि कहाँ से. तो वो कन्विंस हुए कि नहीं देना पड़ेगा आंकड़ा. तो उन्होंने फिर आंकड़ा देना शुरू किया. फिर उन्होंने वाटर बजट बनाया और वाटर बजट उन्होंने बताया कि 2 बार किया है इन्होंने. एक तो 4 साल पहले किया था और इस साल किया है इन लोगों ने, इस साल के पहले बारिश में. तो पहले ये था कि 4.31 लाख टैंकर्स इनके पास में जो था वो सप्लाई था और 5.10 लाख टैंकर वो डिमांड थी. मतलब डिमांड ज़्यादा थी, करीबन 60,000 टैंकर्स का गैप था. और इन लोगों ने उसके ऊपर फिर जो काम किए हैं उसमें सप्लाई साइड के काम कम किए हैं क्योंकि सरकार से उतना ज़्यादा ग्रांट नहीं आ पाई. लेकिन इन्होंने डिमांड साइड पे काम किया कि जो इनकी जो 3 फसलें हैं, एक तो केसर है, कॉटन है और मस्टर्ड है, उसके अंदर इन्होंने केवी के और बीएससी से संपर्क में लेके और मॉडल फॉर्म बनाए. और मॉडल फॉर्म के अंदर इन्होंने 3 टियर फार्मिंग की. तो वही क्रॉप जो पहले जितना इनकम देती थी उतना ही पानी लेती थी, अभी 3 गुना क्रॉप होती है और पानी भी उतना का उतना ही है, उससे कम है. और कई जगह पर तो इन्होंने देखा है कि जब ये पूरा का पूरा सूक्ष्म साधन पे पहुंच गए तो वहाँ पे 20 से 25% पानी में ही इनका काम चाहिए. पहले 6-7 पानी लेते थे, अभी 2-3 पानी में होने लगा है. और केवी के से भी इन्होंने मदद दी है सीड वेराइटीज के ऊपर. तो ये उनका एक अपना अनुभव उन्होंने बताया. मेहसाणा जैसे ड्रॉट पवन 1000 फीट पानी जहाँ पर है वहाँ पर कैसे उन्होंने बताओ के कोशिश की. अब हम मीनाक्षी बहन की तरफ चलते हैं. मीनाक्षी बहन आप थोड़ा अपना बताइए कि आप पहले क्या करते थे, फिर अटल भूजल योजना में आप जो है पानी के ऊपर काम करने लगे. तो आप भी खेती के हिसाब से ही इसमें पानी बचाने की सोच में जुड़े या फिर कुछ और कारण था आपका? મારું નામ પંચાલ મીનાક્ષીબેન.
છે. હું મહેસાણા જિલ્લાના દિવાનપુરા ગામની વતની છું. બધે જ આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં પાણી 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 હોય. અમારો પણ આ પ્રશ્ન ઊભો થયો. હું પંચાયતમાં 2 વર્ષથી સભ્ય છું અને જોડે 5 વર્ષથી હું આરોગ્યમાં આશા તરીકે પણ મારા ગામમાં સક્રિય કામ કરી રહી છું. તો એ ગેસના લીધે અમે જોયું તો ગામમાં દરેક પાણીજન્ય રોગ જેવો દાંતનો દુખાવો હોય, સાંધાના દુખાવા હોય, કોલેરા ટાઇફોઇડ, આ જે પાણી લગતા જે રોગો છે એ અમે જોયા અને બધી જગ્યાએ પાણીના લીધે થાય છે રોગો. તો અમે આ તો કોઈ એવી ગોળી નહીં તો અમે પાણી શુદ્ધ કરી શકીએ. એના માટે પ્રયત્નો તો અમે કરીએ પણ એવા પ્રયત્નો મળતા નતા જેમાં અમને સફળતા મળે. તો એના માટે પંચાયતમાં 2 વર્ષથી હું સભ્ય બની તો મને એક તક મળી પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ કરવા માટે. જો અમે ગામ લોકો સાથે પંચાયતની સભ્યની બહેનો જોડે રહી અને અમે 2-3 જે પ્રશ્નો છે જેમાં અમે કઈ રીતે સફળતા મેળવી શકીએ. તો પહેલા તો અમે જોયું તો બોરના પાણી જે પહેલા 400-500 ફૂટે હતા, જે હાલ અમારી સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ તો 1000-1200 ફૂટે અમારે પાણી લેવું પડે એમ જમીન માટે, ખેતી માટે. તો અમે પહેલા પ્રયત્નો બધા બોડીવાળા સભ્યો મળીને મિટિંગ કરી. તો એમાં પહેલા તો અમે ગામના પાણીનો કેવી રીતે સદુપયોગ થાય એના માટે અમે સક્રિય બહેનો અને પંચાયતની સભ્ય બહેનો બધા મળીને ગામમાં સમજાયું બધાને પાણી ઓછું બગાડ થાય. અને પછી અમે ખેતીમાં પણ ખેતીનું જે મોટા ખેડૂતો હોય કે જેને નાની જમીનમાં નુકસાન થાય તો ખેડૂતને ભોગવવું પડે. અમે મોટા ખેડૂતોને અમે આંતરચાસ પદ્ધતિ, કોઈ ટપક પદ્ધતિ, ફુવારા પદ્ધતિ એવી અપનાવવા માટે અમે એમને સમજાયા અને એ લોકો સમજ્યા પણ ખરા. અને એમનું જોઈને નાના ખેડૂતો ટપક ફુવારા ના કરી શકો પણ આંતરચાસ તો કરે જ. તો એના લીધે પણ પાણીનો અમારો ઉપયોગ થયો. અને એટલામાં તો અમને 2 વર્ષમાં સરકારશ્રી તરફથી અટલ ભૂજલ યોજના આવી જેનો અમને કહેવાય કે સોને પે સુહાગા. તો એનો અમને સરસ લાભ મળ્યો. તો અમે અમારું કિશન માતાનું મંદિર છે ત્યાં અમે મિટિંગ કરી અને અમે જોયું તો અમારો શેડ જે છત એ મોટી ખાસી. તો અમે છતનું પાણી બધું મેઝરમેન્ટથી માપી જોયું તો અમારું લગભગ 530 ટેન્કર જેવું બચત થયેલી હતી. તો એના અમારા ગામ લોકોના ફાળો અને અટલ ભૂજલ યોજના તરફથી જે અમને વોટર રિચાર્જ બોર બનાવવા આવ્યું તો RWSP, તો એમાં અમને સારી સફળતા મળશે. થોડી સફળતા મળી જે આ વરસાદ અમે તાજેતરમાં જ હજી બનાવ્યો તો અમને સફળતા મળી છે એમાં. અને હજુ બી અમે પ્રયાસો કરીશું તો આમાં અમે સારો સુધારો કરી શકીએ. અને અમારા ગામવાળાનો સાથ સહકાર અને અમારી કોશિશોથી અમે વિચારી રહ્યા છીએ કે આમાં બી અમને સારો સહકાર મળે સરકાર તરફથી. અને અમે ગામવાળા લોકો પણ ખેતીમાં પાણીમાં ગામ લોકો પાણીમાં એવી બચત કરે. અને કહેવત છે કે જળ એ જીવન, તો એના ઉપર અમે સફળતા મેળવવાની કોશિશો કરીશું. ये कोविड के टाइम पे अटल भूजल योजना शुरुआत हुई थी और सब पूछिए हमको कमेटी से कॉन्टेक्ट करने की आवश्यकता है कौन सा वर्ग है महिलाओं का पुरुष का जो कि गांव में अभी टच में है. तो हमने सोचा कि ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ये वहीं पे है और ये तो इनको कोई रोक नहीं सकता मिलने से. तो इनको अगर हम लोग ये पार्टिसिपेटिंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कमेटी में अगर इनको शामिल कर दिया जाए तो बात बन सकती है. और देखिए आप मीनाक्षी बहन ने कहा कि जब उन्होंने सारी महिलाओं से, सभी परिवारों की महिलाओं से ये बात की कि हमारे यहाँ जो TDS है 4000 से ज़्यादा, फ्लोराइड काफ़ी ज़्यादा है, इससे जो दांत खराब हो रहे हैं, हड्डियाँ खराब हो रही है और बुजुर्ग लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसलिए अटल भूजल योजना हमें करना चाहिए, ये हमारी है. इससे काफ़ी प्रभाव है. और हमारी 122 जो ग्राम पंचायत है उसमें से 30 ग्राम पंचायत में आप जैसी सक्रिय महिला जहाँ पर नेतृत्व मिला है वहाँ पे वो सक्रिय हो गई सभी. दूसरे गाँव में उतनी सक्रिय नहीं हुई. एक सबसे अच्छा उदाहरण हमने ये दिया है कि हमने हमारी गांव में विसत माता का मंदिर, हमारी जो बचत गढ़ है हमारे उनकी बचत से हमने उस मंदिर के ऊपर टॉप फ्लोर पे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बनाया और वो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग नीचे उठाया. और उसको जब लोगों ने देखा है कि महिलाएं अगर ये अपने योगदान से इतना बड़ा काम कर सकती है तो हम तो ये काम क्यों नहीं करते. तो इसका जो है 100 गांव के आसपास इसका जो है पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है. बहुत अच्छे से बताया आपने मीनाक्षी. तो सर हमको भी पहले तकलीफ हुई थी जब हम मीटिंग करी विसत माता मंदिर में
તો લોકો કે આ પાણી નીચે જશે એનાથી અમને શું ફાયદો થવાનો એમ તો અમે સમજાવ્યું તો જે 1200 ફૂટ આપણા પાણી નીચે ગયા તો જે વરસાદનું પાણી એમ કર અંદર ઘરમાં જ જવાનું એનાથી આપણને પાણીના સ્તર ઊંચા હશે તો લોકોના મગજમાં પહેલા તો એવું વિચારવા માંડ્યા કે આ કરવાથી કશો ફાયદો થશે નહીં પણ જ્યારે પાણી જમીનના અંદર ગયું અમે વિડીયો ઉતારી ગામ લોકોને બતાવ્યો तो गांव लोगों के इतना सारू काम करी तो वही है ना कि भाई जो देखा उसी को पालता है कोई व्यक्ति तो बोले कि ये ठीक है आप पानी उतार रहे हैं तो वो दिखता नहीं है किसी को तो लोग उतना ज्यादा उसको एंकरेज नहीं करते हैं लेकिन अभी व्हाट्सएप का जमाना है वीडियो का जमाना है इन लोगों ने वीडियो बनाया पानी अंदर धड़धड़ाता हुआ गिर रहा था उससे पूरा का पूरा गांव जो है कन्विंस हुआ कि नहीं यार ये तो गजब की चीज है और उससे जब जो एक्चुअली ये जो हमारी जो एलआरपी बहन है पायल वो क्या करती है हर महीने हर कुएं का ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग करती है उसका पानी का तल मापती है कितना अंदर गया कितना ऊपर आया और इन ये जो इनिशिएटिव थे उनके आसपास के कुओं में जब तल ऊपर आया तो लोगों को लगा कि नहीं ये करने से पानी का तल हमारा ऊपर आएगा अदरवाइज तो क्या होता है कि इतने सालों में 1000 फीट पे पानी चला जाता है तो लोगों में एक तरह का भरोसा ही टूट जाता है कि कभी ऊपर भी आ सकता है जब तक आप नर्मदा की बड़ी पाइपलाइन हमारे यहाँ नहीं लाओगे और धड़धड़ाता हुआ तालाब नहीं भरोगे तब तक नहीं होने वाला ये एक मिथ डेवलप हो गया है और इन्फिनाइट है पानी छोटे छोटे इनिशिएटिव है ये जो सुंदर इनिशिएटिव है ये बदलाव की बयान ला सकते हैं अब हम चलते हैं हमारी दीदी बालूबेन के पास बालूबेन आप भावनगर क्षेत्र की हो जहाँ पे समुद्र अंदर आता जा रहा है उसका खारा पानी और कई सैकड़ों गांव हैं जो कि समस्या से जूझ रहे हैं आपने इसके अंदर बड़ी लंबी यात्रा की तो वो यात्रा कहाँ से शुरू की थी आपने उसमें क्या क्या आपने काम किए हैं कैसे महिलाओं को आपने जोड़ा इसके अंदर और आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप गुजराती में बोल सकती हैं मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा अदरवाइज अगर टूटी फूटी भी हिंदी आप बोलेंगे तो सबको अच्छे लगेगी नमस्ते मेरा नाम बालूबेन है હું તાલુકો ઘોઘા જિલ્લો ભાવનગર સમર્થન મહિલા સંગઠનમાં કામ કરું છું પહેલો તો પાણી બેને કીધું એમ પાણીનો પ્રશ્ન પહેલા આવે છે તો પાણીથી જ શરૂઆત થાય જાગી નાખીએ એટલે પાણીમાં જ શરૂઆત થાય છે જાગી એટલે તરત આપણે મોટું સાફ કરવા ધોવા પાણી જ ધોવે એટલે અમારે પહેલો પાણીનો જ પ્રશ્ન હતો કે પાણીનું બહુ મુશ્કેલી હતી એટલે એમ નાનકડું મારું કામ છે અને જાજા એક જ ઓલા વખતે રહી છે કોળી સમાજ હતી તો પાણીની મુશ્કેલી હતી અમે ઘરે સમાજના દબાણથી બહાર નીકળી નહોતા એકલા કામ કરવા મજૂરી કરવા જવા દે પાણી દૂરથી લાવવા જવા દે એ બીજે લાવવું હોય તો બધી મને એટલે પાણીની મુશ્કેલી હતી તો પાણી 2 કિલોમીટર દૂર લેવા જવું પડતું હતું તો માથે બેડા ઉપર એટલી મુશ્કેલી વાત કરું છું કે એક બેડું પાણી લાગે 1 કલાકે એક બેડું પાણી આવે એના કારણે અમારે કેટલી મુશ્કેલી હતી નાના બાળકો અમારા 20 વર્ષના બાળકો છે એ અભણ રહી ગયા છે એને ભણે નથી શીખ્યા નિયમિત નાય ધોઈ નથી શીખ્યા કે મજૂરી નથી કરી શીખ્યા તો અત્યારે પછી એમ કીધું કે અમારે કરવું હું પાણી વિના મનમાં મૂંઝાતા હતા એવી જે વાત કરતા હતા કે ત્યાપાલ બહેનો રોજ મંદિરે કે ગમે ના નવરાય પડે એટલે ભેગા થઈને કીધું કે હવે પાણીનું મુશ્કેલી આપણે કેવી રીતે દૂર કરીને કેવી રીતે આપણે પાણી મેળવવું આવું તો એવામાં અમારે ઉત્થાન માલી જયાબેન ને રંગીતાબેન આવી અને એમને મળ્યા એટલે એમને મળ્યા એમ કીધું કે તમે શું કરો છો તમે કીધું દર અઠવાડિયે કે 5 દિવસ અહીંયા ભેગા થઈને તમારા શું મુશ્કેલ છે એમને પૂછ્યું તો અમે પહેલા પાણીનો પ્રશ્ન કર્યો કે અમારે પહેલા પાણીની મુશ્કેલી બહુ છે એમ અને બેડો 1 કલાકે લાગી એમાં 3 બેડા માથે હોય એક બેડું હાથમાં હોય 1 થી 2 બાળક હોય તો મોટું બાળક હોય એને રાખવા રાખી નાના બાળક રાખે ત્યારે પાણી ભરવા દઈએ એટલે બાળકને ભણાવી નથી અહીંયા મજૂરી નથી કરી એટલી મુશ્કેલી હતી પછી કીધું કે સારું પાણીની મુશ્કેલી હોય તો આપણે મીટિંગ કરો ગામ લોકોને બોલાવો તો ઘરે ઘરે કેવા જતા શેરી કે ભાઈ આપણે પાણીની મુશ્કેલી છે તો તમે આવો તો આપણે મીટિંગ કરીએ લોકો આપણને સરકારમાં આપણને પાણી ક્યાંથી મેળવી છે અહીંયા
તો એ લોકો કીધું કે કામ કરવું કે મીટિંગમાં આપવું મારે કારે મીટિંગમાં આપવું કામ કરવું તો તે પાણી ભરવા તો બેનોને મોકલો છો તો એટલે હેરાન થાય છે તો આમાં શું વાંધો એમ તો આમ આવ્યા પછી પાણી સમિતિ મેં વાત કરી તો કે કેવી રીતે કરવું એમ પાણી પછી 10 ટાંકા મારા ગામમાં સરકારથી ઉત્થાન સંસ્થાવાળાએ મંજૂર કરાવ્યા કે 10 ટાંકા પાણી અને વરસાદનું પાણી સંગ્રહ કરવા તો 10 ટાંકા બનાવ્યા તો એમાં 70% આવડા લોકો આપતા હતા અને 30% ઘરના એવી રીતે ટાંકા બનાવ્યા તો તમને તો નો પૈસા વાળા મારા 2200 ની વસ્તી હતી મારા ગામમાં એવું તો પાણી બધાને તો નો પૈસા વળે પછી એમ કીધું કે ભાઈ ગામને બાજુમાં બોર નખાવ્યા તો 7 બોર નખાવ્યા પાણીમાં ફ્રોડ આવ્યું કે પાણી પીવા લાયક નથી પછી બોર ઉછેલાવ્યા અને પાણી પીવા લાયક બનાવ્યું તો 2 કિલોમીટર દૂર હતા તો લાંબુ કેવી રીતે જાવ આપણે એમ તો કરવું પડે કેટલું કાઢવું પડે તો એમ કે દુષ્કાળ છે તો પાણી કેવી રીતે લાવવું અને કેવી રીતે કટર કાઢવી તો એમ કે ભાઈ અત્યારે મજૂરને ખેતીમાં કઈ કામ નથી દુષ્કાળ છે એટલે તો મજૂર ખેત લાઈન ગાળશે મજૂરી કરી અને આપણે જે લોકપાળ નીતિ કરી એમાં મજૂરી કરીને ભરી દેશે યા તો એવું નક્કી કર્યું પછી ગામના સરપંચે એવું કર્યું એટલે સરપંચે જો અમારા નાનું કુટુંબ છે ગામ નાનું છે એટલે બધા ઘરના હોય મારા દેર કુટુંબના હતા પણ અમારે એની સાથે લડત કરવી પડે ઘડીક લડત કરી વળી પાસે ભેગા થઈ જઈએ ઓલો ન કરતા વિરોધ તો એને રાતોરાત નક્કી કર્યું મજૂર પાસે કામ કરવાનું તો રાતોરાત જેસીબી લઈને એને કટર ગળાવા શરૂ કર્યું તો મેં અવાજ સાંભળી ગયા કે જેસીબી ક્યાં હાલે છે તો મારા દેરને જોવા મોકલ્યા કે જેસીબી ક્યાં હાલે છે જોઈ આવો એમ તો એ કે તો કટર લઈને ગાળે છે તો એમ કીધું કે અત્યાર બંધ કરાવો જેસીબી ગાળી નાખશે તો મજૂરો 160 રૂપિયા નક્કી કર્યા છે પાણી સમિતિ બનાવી તો એ પૈસા ક્યાંથી આપશે યાર લોકફાળ ક્યાંથી ભરશે તો કે હારું તો બંધ કરી દીધી પછી લોકો મજૂરી કરાવી તો છેલ્લે એની 40 રૂપિયા મજૂરી સૂકી એક વખતે તો 40 રૂપિયા મજૂરી શું થાય પછી લોકો એમ કીધું તમે 40 રૂપિયા નથી જોતા અમે મફત કટર ગાળી દઈએ એમાં પાણી પીવું છે એટલે પૈસા નથી જોતા મફત પોતાનું કામ થઈને અમારા ગામમાં પાણી લાવીશું એમ તો એવી રીતે પછી કીધું ખારું પછી કીધું એટલે પૈસા આપ્યા તો ખરા પણ થોડું માથાકૂટ કરવી પડી પછી પાણી આવ્યું પછી અમારા બાળકો નિયમિત નાઈ જોઈએ કે બાળકને નવરાય કે બાળકને ભણવાની કે ત્યાં મજૂરી કરીએ કે પાણી આવ્યું ને પછી મારા ગામમાં અમારા ઘણી અત્યારે જોવો મેં 10 વર્ષ પહેલાની વાત કરી 15 વર્ષની અત્યારે અમારે ઘર કનેક્શન આવ્યા છે એટલે ઘરે પાણી આવે છે બાળકોને નવરાય દોડાય કે મજૂરી કરીએ કે એટલે મારા શરીરના જે દુખાવા થતા હતા એ દુખાવા નથી થતા એટલે એટલી બધી અત્યારે અમારા અત્યારે સુવિધા છે કે અને ડાયરેક્ટ મીટિંગ ન કરતા હતા ત્યારે ગામ લોકો બોલતા મુશ્કેલી ઘણી પડી કેમ કે પાણી સમિતિ બનાવી હતી એમાં સમિતિમાં અમે 7 બહેનો લીધા અને 7 ભાઈઓ લીધા કે બંને મળીને કેવી રીતે ત્યાં બોર નખાવવા ત્યાં ટેન્ક મેકવા ત્યાં સ્નાનઘાટ બનાવવા એવું બહેનોએ નક્કી કર્યું તો ભાઈઓ બહેનો બે લેતા હતા પણ બહેનોએ નક્કી કર્યું બહેનોએ નક્કી કર્યું ત્યાં સ્નાનઘાટ બનાવ્યા હવેડા બનાવ્યા પાણીના ટેન્ક બનાવ્યા પાણીની ટાંકી ત્યાં બનાવી પછી એવા કામ કેવી રીતે કરે છે એ બધી જવાબદારી લીધી હતી અમારા 3 જણની જવાબદારી વધારે હતી તો ટાંકી બનાવી ને તો એની ટાંકીના પાયો પૂરો ને તારો 15 થેલી સિમેન્ટની ઓછી નાખી નિશાન કર્યું છે નિશાનથી એક આટલું 2 ઇંચ જેટલું ઉતારી નાખ્યું નિશાન પછી 15 થેલી ઓછી વાપરો તમે આ કામ બંધ રખાયું એમ કે પાયો મજબૂત કરો નહીંતર આ કાંઈ જેવું તેવું કામ નથી યાર પછી બંધ રખાવી અને ગામ લોકોને ભેગા કર્યા પાછું 15 થેલીનો માલ રખાયો ખરિયા કયા વાપરવા ક્યાં વાપરવા એ બધી અમને કીધું કે તમને શું ખબર પડે એમ કે એમને ખબર પડે આટાની હરિયો કયો કહેવાય શાળાની હરિયો કેવો કહેવાય એટલે એ બધી વાત કરી પછી કામ પાકું કરાવ્યું પછી ગામ લોકો એમ કીધું કે બોલાવા જાય ને કે હવે આ બાજુ તો બધી વાયલી નીકળશે ઘરે ઘરે રોજ મીટિંગ કરાવી કે આ બધું પૂતા પાણી પાવાનું છે તો અત્યારે બધા પૂતા પાણી પીવે છે અત્યારે કહે છે કે નાના બેને પાણી પાયું અત્યારે ગામમાં આટલી પાણીની સુવિધા છે કે અમારે કોઈ જાતની મુશ્કેલી નથી પછી જમીનમાં ખેતીવાડીમાં પાણી નહોતું કૂવામાં પાણી નહોતા વરસાદમાં મોડા હતા એટલે તો એમાં નદીમાં જે 8-9 ચેકડેમ બંધાવ્યા ખેત તલાવડી બનાવી અત્યારે વાડીમાં અમારે પાણી પૂરતું મળી રહેશે અને તે ખેતીમાં શાકભાજી ને બધું ઉગાડી છે. નમસ્તે.
બહેનોએ પાણી પીવડાવ્યું. વાહ વાહ, શું વાત છે. આમ તો સરકારનું કામ છે, એ નહીં કરી શકી, બહેનોએ કર્યું. वाह. तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ. बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पूरी कहानी होगी. और सच पूछिए तो इसमें प्रशासन के बहुत सारे जो है ना वो नुस्खे भी उन्होंने दिए हैं. उन्होंने कहा कि करीबन 2007 के आसपास में हमारा जो एरिया है, आप कभी भावनगर अगर गए हैं तो देखा होगा आपने, कोस्टल एरिया है, बहुत ही प्लेन बेल्ट है. समुद्र का जब उतार चढ़ाव आता है तो पानी इनमें आ जाता है जमीनों के अंदर, उनके कुओं में और इनके सारे जो संरचना है उनमें खारा पानी आ जाता है. पीने के पानी के लिए हिंटरलैंड में अंदर दूर दूर तक इनको जाना पड़ता है. तो इन्होंने सबसे पहले जब उठान इनके पास में आया है, नफीसाबिन मारूफ की संस्था है, तो उन्होंने मन बनाया कि हम महिलाओं के साथ में ही काम करेंगे. और जब वो इनके पास में गए तो उन्होंने कहा कि क्या करें पानी के लिए. तो इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि जो दूर है एरिया सुरक्षित है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ रिचार्ज टैंक बनाते हैं. जब बारिश का मीठा पानी आता है तो वो अंदर उतार देते हैं, उसको पक्का बनाते हैं जिससे कि वो सी वाटर उसको मिक्सअप ना होता है, और उसी को हम लोग साल भर जो है पिएंगे. तो इस तरह से इन्होंने 10 कुछ टाका बनाए उस टाइम पर. और उसमें बात ये थी कि 30% कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी था गांव वालों का, तभी वो काम होगा. तो ये काफी उलझनों में रहे कि जेसीबी से करवा लें कि फिर लोगों से करवाएं. तो कुछ पावरफुल लोग थे, उन्होंने कहा कि जेसीबी से करवा लेते हैं तो फटाफट हो जाएगा. तो जेसीबी से उन्होंने काम भी शुरू करवा दिया. लेकिन फिर ये महिलाएं गई और इन्होंने कहा कि कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा 30%. ये कंट्रीब्यूशन तो तभी जब आएगा जबकि लोग इंसान वहां जाके काम करेंगे, काइंड कंट्रीब्यूशन जब करेंगे. तो फिर इन लोगों ने वापस जेसीबी को हटाया और सबने मजदूरी की उसमें, और केवल हर एक आदमी को 40 रुपये ही मिला. लेकिन मजदूरी जो है मोटिवेशन नहीं था, मोटिवेशन था पानी लाना. तो ये एक बड़ी मार्मिक उनकी बात थी. इस तरह से इन्होंने पूरा किया और 2 किलोमीटर की पाइपलाइन करनी थी. तो चैनल जो है पूरी जेसीबी से नहीं खोदी और मजदूर लगा के उन्होंने उसको खोदी और ये अपने गांव तक पानी उसको लाए. अब ये तो पायलट हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था. इसको अब स्केल करना था तो उसमें सरकार भी जुड़ी. सरकार जब जुड़ी तो जो वेंडर्स आते थे वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते थे, है ना. वो जो सीमेंट रेती का मिक्सचर है उसमें गड़बड़ करने लगते थे. तो आप लोग वहाँ जाके खड़ी हो जाती थी और कहती कि ये नहीं चलेगा. अगर पाया मजबूत नहीं हुआ है तो टाका कब तक चलेगा. ये पानी पूरा हमारा मीठा पानी इतना हमने मुश्किल से किया है, वो जमीन में उतर जाएगा. तो आप ये क्वालिटी खराब नहीं कर सकते हो. खड़ी हुई तो उनको करना पड़ा, मजबूरन उनको अच्छा काम करना पड़ा. तो आई थिंक ये गवर्नेंस के लेसन हैं कि महिलाएं अगर थी तो ये क्वालिटी हो पाई और वो स्ट्रक्चर आज भी काम कर रहे हैं. अदरवाइज वो स्ट्रक्चर लीकेज हो जाते हैं और उसमें खारा पानी वापिस से घुस जाता है. तो ये बहुत ही मोटिवेशनल आपकी जो है पूरी बात रही. और सही में इससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर आप जैसे लोग गांव वाले तो खास करके मातृशक्ति इस पे जुड़ जाए तो अभी है ना कि काम के ऊपर काम, काम के ऊपर काम, काम के ऊपर काम, लेकिन सर्विस नहीं मिलता, वो शायद हमको मिल जाए. धन्यवाद आपका. अब हम चलते हैं भारती जी के पास. भारती जी अय्यर एरिड कम्युनिटी टेक्नोलॉजी भुज जो है बहुत ही उम्दा काम कर रही है, खास करके कोस्टल एरियाज में, कच्छ भुज में. वो एक अलग गुजरात है. तो हमारे गुजरात में हम कहते हैं जब वहाँ कोई जाता है तो क्या आप गुजरात से आए हैं या इधर आते हैं तो बोले आप कच्छ से आए. सो वो कल्चर है, कल्चरली बहुत डिफरेंट है वो, और बड़े मजबूत और अच्छे लोग हैं वहाँ के. तो आपके अनुभव उनके साथ में क्या रहे, और आप पार्टिसिपेटिव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का काम पुरुषों के साथ भी कर सकते हैं लेकिन आपने महिलाओं के साथ ये काम शुरू किया. तो आप अपनी थोड़ी सी बात करिए कि कैसे आप मोटिवेट कर पाए, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में आप लोग काफ़ी अग्रणी हैं. तो टेक्नोलॉजी और महिलाएं आपस में कैसे आपने जुड़ाव किया, आपका प्रेजेंटेशन. अगर आप 5 मिनट तब तक. सभी को मेरा नमस्ते. पानी के बारे में हमारी महिला शक्ति ने जो यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की.
मैं यहाँ पर वो उनकी जो जर्नी रही उसमें से मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बस मैं ये कहूँगी कि हम लोग जो बोल रहे हैं, जैसे कि आज सुबह के सेशन में भी मैंने देखा कि जो GMDC क्या कर रही है उसके बारे में भी हमने देखा। माइनिंग, अभी वाटर का भी एक माइनिंग भी हो रहा है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए आज लोग बोल रहे हैं कि हमको मिल नहीं रहा है, हम कैसे करें। लोग आके दिखाते भी हैं कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में हमने ये किया। लोगों को पानी की समस्या थी तो हम लोगों ने टैंकर बनवा दिए, घास चारे की समस्या थी तो हम लोगों ने गाँव तक घास चारे का जो ट्रैक्टर होता है वो ला के दिया। तो ये जो काम हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म काम है। अगर उनके पास दवाखाने की सुविधा नहीं है तो हमने ला के दे दिया कि चलो हम मोबाइल गेम ला, ठीक है, वो भी जरूरी है। हम ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा काम करें, क्योंकि हम NGO भी हैं और हम उसी समाज से आ रहे हैं और हम उसी परिस्थिति से आगे यहाँ तक पहुँचे। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा काम करें कि जिससे लोग अपने पैरों पे खड़े हो, पगभर हो पाए और आगे जाके, आज संस्था का प्रोजेक्ट है, हमने तीन चार साल तक काम किया, 5 साल काम किया। हम ऐसा काम करें जैसे कि पायल है या फिर हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो तैयार हो, एक पायल नहीं लेकिन हमारे हर गांव में ऐसे पायल हो, तो लोग ऐसे तैयार हो कि वो अपने पानी की समस्या है या अपने गांव की किसी भी समस्या के लिए खुद से तैयार हो। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि महिलाओं के साथ जब बातचीत करने जाते थे तो जैसे बालू बहन ने बताया, बाकी हमारी महिलाओं ने बताया कि उनको जोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी जो मर्यादाएं थी उसके साथ हमें भी सीखना था। हम बोले कि हमारा ऑफिस का टाइम 10 से 6 है, हम जब जाए तब महिला एकत्रित होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जो पहला फोटो हमने इसमें रखा है उसमें एक काला तालाब, देखिए आप गांव का नाम ही देख लीजिए, उस गांव का नाम है काला तालाब। तालाब मतलब उस तालाब के नाम से उस गांव पड़ा है। लेकिन उसी गांव में पानी की इतनी समस्या थी कि वहां पर महिलाओं को तालाब खोदने का काम, छतराहट का काम जो खोला जाता है, तो उसमें तालाब में वो मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। तो बोले आपको जो बात करनी है वहां आके करिए। तो हमने वहां पर जाके बात की, जिस समय पे महिलाओं को टाइम था वहां जाके बात की। इन शॉर्ट में बताऊं तो हमने उन लोगों के साथ उनके समय पे जाके इस तरह से बात की। तो सबसे पहले समस्या, जैसे बहनें बोल रही थी कि पानी तो सबको चाहिए, तो जब उनके साथ बात करते थे तब भी एक पूरा एक ग्रुप जो है, जो कि गांव में सबसे नीडी होता है, वो रह जाता था। इस गांव में भी 30 फैमिली ऐसी थी जिनको पानी अभी तक, वो नल से जल वाली जो बात है, जो जल जीवन मिशन के थ्रू बहुत सारे मिशन मोड में कामगिरी हुई, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आज भी वो 30 घर उस गांव में ऐसे थे जहां पर उनको टैप वाटर से पानी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो योजना है वो आप जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन सबसे पहले अगर आप सही में हमारी समस्या की बात कर रहे हो तो पहले ये 30 घरों में जो पानी नहीं मिल रहा है वहां तक आप पानी कैसे पहुंचाओगे, ये बताओ। आप पानी पे काम कर रहे हो। बातचीत करते हुए पता चला कि आज भी पाइप वाटर पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्स है उनका, कि तालाब में कुआ है, हमारे यहाँ पर देखें तो हर गांव में ऐसी ये सुविधा होती है जो हमारे परंपरागत स्रोत है। पर क्या हुआ कि पाइप वाटर आने की वजह से, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो सही है, लेकिन लोगों को मिलना तो चाहिए। तो हमको क्या करना है कि हमारे वहाँ पर गर्मी के दिनों में खास दिक्कत होती है पानी की, तो हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अपना जो पाइप वाटर मिल रहा है उससे आप पानी लो, उसके लिए मना ही नहीं है। और हम भी नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को इतने दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़े, लेकिन हमें अपने जो परंपरागत सोच है उनको भूलना नहीं है, उनके ऊपर भी हमें काम करते रहना है। तो जिस सोच से हमें, क्योंकि गांव तभी तो बसाया गया, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही होशियार थे, बहुत ही अक्लमंद थे, तब जाके उन्होंने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पे हमें गाँव बसाना है। तो काला तालाब गांव जब बसाया गया था तब पूरा गांव उस तालाब पे निर्भर था, आज भी वहाँ पर उसी के ऊपर निर्भर है। तो पाइप वाटर के लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल तालाब है उसमें हम क्या करेंगे। तो उसके अंदर इस फैमिली को जहाँ पर वो शॉर्ट फॉर्म पड़ रहा था, तो उस शॉर्ट फॉर्म को पूरा करने के लिए कितनी नीड थी उतना ही वहाँ पर तालाब के अंदर खोद काम किया गया। आज परिणाम ये है कि उनको 12 महीने के लिए पानी मिल रहा है।
भले वो लोग कुएं से पानी ले रहे हैं, पहले ये परिस्थिति थी कि उनको रात को 1 बजे 1:30 बजे कुएं के वहां पर जाके बैठना पड़ता था। और जब कुएं में रीझ के पानी जमा होता था, एक हेल समझते हैं ना, जो एक बेड़ा उसके ऊपर एक छोटा बेड़ा, तो उतना पानी उनको उस कुएं में आ जाए तब तक वेट करना पड़ता था, 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद जब वो पानी भर जाता था तो वो घड़े में भर के लेके आती थी। तो ये हाल था वहां पर उनको। अभी ये परिस्थिति हुई उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से कि अभी उनको पानी मिल रहा है। हम लोग एक ये काम करते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले ग्रुप फॉर्मेशन करना है, फिर ग्रुप को ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम करना है जिससे कि वो बोल पाए कि उनकी समस्या क्या है। जब एक बार वो बोलना चाहे, बोलना सीख जाए कि हमारी समस्या क्या है, उसके बाद फिर महिलाओं के साथ बैठ के जो कि ऊपर की फोटो में दिखाई गई, तो हम ये बताते हैं कि प्लानिंग कैसे करना है। महिलाओं को साथ में रखते हुए, उनको जोड़ते हुए एक पूरा प्लानिंग किया जाता है कि वो क्या चाहते हैं। जो गांव का प्लानिंग है वो तो करते हैं, लेकिन एक फैमिली का माइक्रो लेवल का प्लानिंग भी करना है कि उसको उसके घर के अंदर पानी मिल जाए, उसके लिए हमें क्या करना है। तो वो प्लानिंग होने के बाद फिर उसको अमलीकरण में कैसे लाया जाए, उस दिशा में फिर प्रयास किया जाता है। और हम ये एक और ये भी काम करते हैं कि सिर्फ संस्था है तब तक काम चलेगा, संस्था का प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म। तो हम ये भी करते हैं कि उस एरिया के, मतलब कोई क्लस्टर हुआ या फिर ब्लॉक हुआ, तो वहां पर तो भूजल जानकार जो है वो तैयार किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी करते हैं कि वहां पे जो भूजल जानकार जो तैयार होते हैं वो हर गांव में एक भूजल जानकार तैयार हो, और हर गांव का वो भूजल जानकार जो है वो टेक्निकली भी साउंड हो। हम बोल रहे हैं कि पानी मिलना, पानी तो मिलना, लेकिन पानी जो है वो क्वालिटी वाला मिले, कम से कम पीने का पानी। खेती का पानी तो उनको चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमारी आजीविका खेती और पशुपालन में है, लेकिन पीने का पानी कम से कम हम इंश्योर कर पाए कि हमें जो पानी मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को हम अपने से चेक कर पाए। हमें जो पानी मिल रहा है वो पूर्ण रूप से है कि नहीं है, मुझे पूरा पानी मेरी जो नीड के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उसको करने के लिए एक तो टेक्निकल जो ट्रेनिंग, जैसे सर ने बताया कि हमारी संस्था का जो नाम ही है कि एरिड कम्युनिटीज एंड टेक्नोलॉजीज, तो आज बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको देखते हुए हम वो पानी इन्होंने बताया पायल ने कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट के ऊपर तो काम करना ही करना है, लेकिन डिमांड साइड पे तो हम महिलाओं के साथ वो भी बात करते हैं कि डिमांड साइड है क्या। तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना है। सप्लाई में हम पुरवठा तो बढ़ाते जाएंगे पानी का, वो तो लेते जाएंगे, लेकिन अपनी आदतों में भी बदलाव करना है। अगर हमारी आमदनी 2 रुपया और हम खर्चा 3 या 5 रुपया कर देंगे तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों का बचाया हुआ जो ग्राउंड वाटर था वो भी अब हमने यूज कर लिया है, हम 1000 फीट तक नीचे गए हैं। तो वो बचाने के लिए एक एक आदमी के अंदर चिंता होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए, एक मिशन मोड में हमें काम करना है। मोटर से हमने पानी निकाला है तो उस स्पीड से अगर आप ये बोलोगे कि भाई टेक्निकली परंपरागत रूप से जो भी हो रहा है वैसे रिचार्ज करें तो नहीं होगा, तो उसके लिए हमें इंजेक्शन मेथड से ही ये करना होगा। और इन सारी चीजों के लिए लोगों में, एक एक गांव के जो लोग हैं उनके अंदर ये आग, ये समझ करने के लिए बाकी की क्षमा चाहता हूँ। अगले राउंड में हम फिर और आगे आपसे क्योंकि हमारे 2 पैनलिस्ट और उनसे बात करने हम लोग। बस अंत में सिर्फ एक बात बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को अगर हम इस बात में जोड़ना चाह रहे हैं तो हमें ये करना होगा कि महिलाओं को हमें संपूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा। अगर मीटिंग में उनके बच्चे आ रहे हैं तो ये भी होगा, शोर भी होगा, सब कुछ होगा। अगर महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो भी हमें उनसे बात करनी होगी। अगर महिलाओं को हम जोड़ना चाहते हैं तो उनके टाइम पे हमें जाना होगा, उनकी क्या समस्या है वो समझनी होगी और पहले उनके ऊपर काम करना होगा। इसके बाद फिर उनको एक बार हमारे ऊपर विश्वास आ गया, बस एक ही मिनट एक बात करके मेरा, हमारे जो भूजल जानकार है, जब हम महिलाओं का ग्रुप बनाने जाते थे तो सबसे पहली बात उनकी यही होती थी कि ठीक है बेन, हम गांव में मीटिंग में आएंगे, तालाब में आएंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। आज परिस्थिति ये है कि एक बार उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ काम करते हुए उनका विश्वास संपादन हुआ, तो आज परिस्थिति ये है कि वो पूछते हैं कि बेन आप बोल रहे थे ना कि हमको अहमदाबाद में कुछ देखने के लिए जाना है, तो वो हम कब जाएंगे। ये भी हमने काम किया था कि व्हाट्सएप बिजनेस का ट्रेनिंग भी उनको दिया गया। जो महिलाएं घर पे बैठ के अपना काम करती है, कोई नाश्ता बनाती है, कोई ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, तो उनको व्हाट्सएप बिजनेस सिखाया गया जिससे उनका बिजनेस बढ़ा।
और उसमें उनको एक अवार्ड भी मिला, 4 महिलाएं थी जिनको स्मार्टफोन मिला। तो वो महिलाएं अपना खुद का जो है वो फोन, स्मार्टफोन जो है वो उनको मिला, इससे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। तो ये खास टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि लिखा पढ़ी। अभी पहले सेशन में सर हम लोग थे वहाँ, हमने बताया जीएमडीसी में से बोल रहे थे कि जो 8 पास महिलाएं हैं उनको कैसे काम करना है, जॉब लेने के लिए कैसी नौकरी चाहिए वो हम बता देंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल के अंदर आप टच करेंगे तो सा लिख जाएगा, अ लिख जाएगा। हम हाथ से अगर लिखना सिखाएंगे तो हमारे गांव की निरक्षर महिलाओं को हम वो साक्षरता कहाँ से दे पाए। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग ये है। क्षमा चाहते भारती जी, आपने लेकिन बहुत खूबसूरती से महिलाओं को आपने पहले तो पानी, फिर खेती और फिर उद्यमिता, तीनों में टेक्नोलॉजी से आपने जोड़ा, बाजार से जोड़ा, ग्राउंड वाटर को समझने में जोड़ा और खेती बाड़ी में जोड़ा। धन्यवाद आपका। समय बहुत कम है हमारे पास में और मुझे थोड़ा सा डर है कि हम लोग शायद क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 2 हमारे जो पैनलिस्ट है अभी उनकी बात सुनना बाकी है। मैं हंसा बहन से रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे ख्याल से हम पहले सुनते हैं लीला देवी जी को। राजस्थान की ओर चलते हैं, हमारा देश का सबसे रंग बिरंगा और सबसे बेहतरीन संस्कृति वाला प्रदेश, और पानी की भी वहाँ पर संस्कृति। मेरे ख्याल से अगर राजस्थान की संस्कृति को हम सीख लें तो पूरा देश पानी की समस्या से निकल सकता है। तो हम लीला देवी जी से सुनना चाहेंगे कि वहाँ पर आपके पानी के काम के बारे में। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा गांव है द्रावण और ब्लॉक जालोर, जिला उदयपुर में, राज्य राजस्थान। सभी से पहले मैं ये बात करती हूँ, हमारे हाँ पानी की बहुत समस्या थी। इसके बाद में हम सेवा मंदिर से मिल के हमने क्या करा उसकी सहमति बताऊंगी। हमारे सबसे पहले ये समस्या थी कि नदी नालों, हमारा कचरा जंगल का एरिया है, पानी कहीं रुकता नहीं था, तो वहाँ पानी की समस्या बहुत थी। हम 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पैदल लेके ना सके पानी बड़े में। इसके बाद में हम सेवा मंदिर संस्था से जुड़ करके हमने वापस एक ग्राम समूह बनाया, गांव में कमेटी बनाई, ऐसे महिला की समूह बनाई, तो 400 महिला लगभग जोड़ी। इसके बाद में हमने सबने समाधान रखा। सेवा मंदिर संस्था से आग्रह किया कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो इसको क्या करा जाए। वापस हमारा वहाँ आके नदी नालों में ही बैठक की थी, वहाँ सब सेवा मंदिर के कार्यकर्ता सब बैठे और उसके बाद में हमने सबने चर्चा किया हमारे गांव की महिला ने, तो पानी हमारे कैसे रोका जाएगा। तो पहले हमारे पानी थोड़ा कम रुकता था, कच्चा बांध के पानी इधर खेतों में ले जाते थे, तो पानी थोड़ा कच्चा बांध था तो कैसे था लोग छोड़ देते, पूरी रात किसान नदी नालों से घूमते रहते थे। इसके बाद में हमने वापस प्रस्ताव रखा, हमारे सेवा मंदिर ने हमें सहयोग दिया, वापस 3 एनीकट बांधे पक्के। 3 एनीकट बांधने के बाद में हमें वापस पक्का डोरा बनाया, सारों खेतों पे पानी भी जा रहा है। अब उसमें पहले तो हमारे एक ही खेती कर रहे थे, जो कि गेहूं की खेती कर रहे थे। इसके बाद में अभी चना, सरसों और मूंग, जो कि जायद फसल, रबी, ये 3 फसल अभी कर रहे हैं। तो उस समय हमें एक फसल करता है तो ज्यादा नहीं, 100 किलो 200 किलो, अभी 500 कुंटल वो अभी कमा रहे सब आसपास के। बिल्कुल दूर एरिया था, जंगल का था, वहाँ पानी से उनका जुड़ा नहीं था। अभी वो अच्छा पानी ले रहे हैं। अब उसने पहले हमारे जो नए एनीकट नहीं बांधे थे, कच्चे थे, उस समय में नदी किनारे में बोरिंग किए थे, तो उसमें पानी केवल 30 मिनट आता था। नदी है यूं करके पानी जल्दी आ जाएगा यूं, तो वो 300 से 400 फीट। अभी हमने वापस अभी रिंग किए, अभी अच्छे फुट पे पानी आ रहा है। तो अभी हमें 24 घंटा पानी चल रहा है और 24 घंटा नदी नालों में पानी जा रहा है। तो अभी पहले वाला वो अभी नहीं 60-70 साल अभी डॉक्टर वो कहते पहले तो 4 महीना बारिश होती थी तो भी पानी नदी में नहीं था। अब पानी अभी तो 3 महीने 2.5 महीने बारिश होता तो भी इतना पानी नदी में जा रहा है बह के। धन्यवाद। आलू बहन से आपसे हमने ये जरूर सीखा कि अगर पानी की बात करनी हो तो नदी के ऊपर बैठक करो, नदी के ऊपर जाके बात करो, तो फिर वो समझ में आती है। कमरों में बैठने पानी की बात करने से कुछ नहीं होता है। क्या खूबसूरत बात है। और आपकी वो शब्द जो है आपने कहा कि पूरे गांव में पानी पहुंच गया, सभी खेतों में पानी पहुंच गया। 24 घंटा पानी चलता है, किसी का खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपको जो हमारी ये जो दीदियां हैं, इन्होंने जो बात करी ना कि पानी के उपयोग को कैसे कम किया जाए,
जो फसल 7 पानी में हो सकती है होती है उसको 3 में कैसे किया, ठीक है, उसके ऊपर आप अगली बार जब समय मिलेगा तो हम बात करेंगे। उस पर आपकी क्या राय है, क्या पानी का उपयोग हम कर सकते हैं खेती में? कर सकते हैं, वाह क्या बात है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एक हंसा दीदी है, ये धरोई इरिगेशन प्रोजेक्ट की है महसाणा में। और आप जानते हैं कि देश में बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारी केनाल है, लेकिन इन केनाल का पानी कैलेंडर फार्मर तक नहीं पहुंचता। हमारे देश में कई सारी अध्ययन हुए हैं और ये कहा जाता है कि जो डिजाइन कमांड है उससे केवल 30 से 40% एरिया में पानी पहुंचता है। तो ये कैसे पहुंचाया जाए, और इसमें महिला शक्ति ने कहीं पर कोई काम किया है क्या? तो उसके ऊपर हंसाबेन थोड़ी सी बात करेंगे, उनके अपने अनुभव, उन्होंने काफी कठिनाइयां भी इसमें उठाई है। हंसाबेन आप अपनी बात रखें। आधारे पाणी खेती करता હતા પણ પાક તો ખેડૂત તો સરકાર હોય તો एक मिनट आप हंसाबेन आपका वीडियो बंद करवा दीजिए। अगर पास में कोई खड़े हैं तो उनसे कहो कि आपका वीडियो बंद कर दे। आप बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ जी। મારું નામ હંસાબેન પટેલ છે। પાણી તો પટેલ તો અમાર કોઈ સપોર્ટ નથી તો એવું કે તો બોલી તો दिलीप भाई आपका भी म्यूट कर दीजिए, आपका तो बंद ही कर दीजिए। दिलीप भाई आप बंद कर दीजिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। તો અમે અમારા ગામ એકત્રિત કર્યું અને ટીએસપી સંસ્થામાંથી આ સાહેબો આવી હતી તો ભાઈ તમે મંડળી બનાવો, તો અમે મંડળી બનાવી અને કમિટીમાં 11 સભ્યોની જોઈન કરી, જેમાં 3 બહેનોની અમારી ભાગીદારી અને આ મંડળીનું પાણી છેક સેવાળા સુધી પહોંચે એના માટે ને સરસ કામ વહીવટ કરે એવા ઓપરેટરો નક્કી કરી પાણી છેક શિવાળા સુધી ખેડૂતોને મળી શકે એવા ઓપરેટરો કરે બધું થઈ ગયું, પણ બહેનોના પાણી હજી શિવાળા સુધીના ખેડૂતો માટે બહેનો પાસે પાણી વાળી ખેડૂતો પોતાના ધંધા પર ગયા હોય, કોઈના ઘેર પુરુષ ના હોય તો કેટલો દિવસ પાણી ખર્ચા મજૂરો 500 રૂપિયા ના મારો તો બહેનોને ખર્ચ વાળા તો બાકી કરાવે તો કે નિયારું રાતે પુરુષ પાંચવાળો થઈ જાય તો બહેનોને કે પાણીની સગવડ કરાવી મધ્યમ તો પહેલા રીતે જો વ્યક્તિ એનાને કઈ તોડફોડ હોય ને જલ્દી તો હવે બાજ્યા તો સર્વે કરવામાં આવે તો 10 લાખ ખર્ચો તો 10 રૂપિયા તો हंसाबेन सुन रहे हैं? हंसाबेन आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, तो हंसाबेन जो है ना आवाज अच्छी नहीं आ पा रही है, काफी जो है ना उसमें दिक्कत आ रही सुनने में सबको। तो आपकी बात, आपका अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी बात में रख दूं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपकी बात सुनना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। राजन भाई मैं उनकी बात रख देता हूँ। तो हंसाबेन ने कहा कि जो पीआई का जो एक्ट है उसके अंदर लैंड जो ऑनर है, राजन भाई बंद कर दीजिए, तो लैंड ऑनर है वही उसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पे जमीन है नहीं, तो ये बड़ी समस्या हुई शुरुआत में। संस्था चाहती थी कि महिला भागीदारी बढ़े, लेकिन एक्ट जो है, एक्ट में लैंड ओनर ही सदस्य बन सकते थे, तो वो बड़ी परेशानी थी। फिर महिलाओं के साथ में जब गांव में घूमे और देखा कि महिलाएं इस केनाल के पानी का करती क्या है, सिंचाई करती है या और कुछ करती है,
तो एक्चुअली वो पूरे साल भर का जो उनका जो सफाई करती है दिवाली के आसपास, यही टाइम रहता है। उस टाइम पे अपने बच्चों को नहलाती है, अपने कपड़े हैं, अपने गादी बिस्तर है, चादर है, सब वहाँ के धोती है। और उसमें उनके बच्चे गिर जाते हैं, वो फिसल के गिर जाती है, इंजुरी होती है, कई लोगों की तो मौत होती है। तो उन्होंने कहा ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो आप, सिंचाई का तो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले सारे केनाल के ऊपर सर्वे किया गया, वॉशिंग घाट का जो है कंस्ट्रक्शन का सोचा गया। वॉशिंग घाट एक ऐसी एक पहल थी जिससे महिलाओं ने कहा कि हम सदस्य बनना चाहते हैं। जब वो सदस्य बनी तो कई सारी महिलाएं थी जिनके कि पति कहीं बाहर काम करते हैं, उनको इरिगेशन करना होता था। तो उन्होंने कहा कि हमें दिन में पानी चाहिए, रात में मिलता है हमको, रात में हम लोग हमारे लिए सुरक्षा नहीं है। तो उनके लिए जब उन लोगों ने बात रखी इरिगेशन कोऑपरेटिव की एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने कि जहाँ भी महिलाएं सिंचाई करती है वहाँ पे दिन में हमें सिंचाई का मौका दीजिए, हमारा रोटेशन दिन में रखिए, तो वो उन लोगों ने मंजूर की। कुल मिला के हंसा बेल का और टेल एंड की जो महिलाएं उनको पानी मिलने लगा। तो उनकी पूरी जो पूरी ये जो कहानी है वो ये बताती है कि जहाँ महिलाएं अगर उनकी प्रायोरिटी को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर वो जुड़ेंगी, और वो जुड़ेगी तो आपका सुशासन होगा, आपका गवर्नेंस इंप्रूव होगा, और इरिगेशन में भी डेमोक्रेसी है। बहुत बहुत धन्यवाद हंसाबेन आपका। अब हम लोग जाते हैं हिमाचल की ओर। हम लोग जाते हैं आभा भैया जी की ओर। तो आभा भैया जी, हमारे पास बहुत कम समय है, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे। अब आप ही जो है हमें बताइए कि ये जो है पहल है गांव के स्तर पे है, हेमलेट के स्तर पे है, परिवार के स्तर पे है, ये छोटे छोटे बहुत सुंदर काम है जो कि बड़े बड़े बदलाव ला रहे हैं। तो आपका अनुभव क्या रहा इस ग्रास रूट के जो इनिशिएटिव्स है, उनको आप राज्य स्तर पे, देश के स्तर पे और यूएन के स्तर पे आप क्या पहल कर रही है, और आगे आपको क्या फ्यूचर लगता है, क्या डायरेक्शन लगता है महिलाओं को वाटर गवर्नेंस में जोड़ने के लिए? आभा जी प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम। और देरी के लिए मुझे लग रहा है समय से परेशान है। तो सबसे पहले मैं IRCTC और सेवा मंदिर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ये क्लाइमेट क्राइसिस जो पूरा हो रहा है उसके संदर्भ में पानी और औरत के मुद्दे को उठाया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज मैं अभी कहना चाहती हूँ कि जो मैंने सुना है, महिलाओं के जो प्रयास है बहुत ज्यादा सराहनीय है। बहुत मुश्किल काम है पर उन्होंने इतनी शिद्दत से किया है और लगातार जुड़ के किया है, बहुत सारे पहलुओं को जोड़ा है। मुझे लगता है कि आप प्रयास करें कि इन सब की जो भी कहानियां, इन सब की जो प्रेजेंटेशन है उनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि वो सरकार के लिए, UN के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती और उनको किस तरह से जोड़ा जाए और इस तरह के प्रयासों को और ज्यादा जगह पर किस तरह से हम कार्यान्वित कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं शुरू करना चाहती हूँ। मेरा एक पूरा बहुत गहरा थोड़ा सोच है और मुझे लगा उसको शायद शेयर करना मेरे लिए जरूरी होगा नारीवादी विचारधारा के अंतर्गत। हिंदुस्तान में ही नहीं, अधिकतर गरीब मुल्कों में लड़के और महिलाएं पानी की गरीबी का चेहरा है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि UN का जो डेटा है कि पानी की जिम्मेदारी का जो बोझ है वो 80% परिवार ऐसे हैं जहाँ उनके घर में पानी नहीं है। और एक और डेटा मिला है संयुक्त राष्ट्र से कि 200 मिलियन पानी औरतें हर दिन लेने जाती हैं, लेकर आती हैं, जिससे कि घर में पानी की जो भी कमी है वो पूरी होती है। ये एक बहुत बड़ा हादसा है मेरे लिए कि महिलाओं के श्रम को और महिलाओं की जो बहुत थकान है इसके बारे में क्यों नहीं सरकार, समाज, संयुक्त राष्ट्र ये सब क्यों नहीं सोच रहे हैं। और ये मेरे लिए कैपिटल में है कि औरतें लगातार इस काम को करती चली जा रही हैं और शिकायत नहीं। तो ये सारा जो काम है कि पानी की गरीबी का परिवार, पशु, खेती के पानी, सभी जिम्मेदारी औरतों की पीठ पर है। हमने सबसे पहले बहुत सबने औरतों को नंगे पैर 2-3 घरों को सिर पे लेकर दूर तक जाते हुए देखा है। राजस्थान का तो ये बहुत ही समसामयिक उदाहरण है। उनकी पीठ के दर्द को नहीं सुना और उनके पांव की छालों को नहीं देखा। तो ये जो एक
मुद्दा है, इसको हमें समझना होगा। पानी तक पहुंचना, संग्रह करना, भोजन बनाना, नहाना, नहलाना, कपड़े बर्तन धोना, पशुओं को पानी पिलाना, खेतों तक पानी पहुंचाना, इतने अनगिनत कामों की जिम्मेदारी पूरी औरत पर है। और मेरा सवाल है क्यों? जैसे पानी का स्तर कम होता जा रहा है और जलवायु आपदाएं बढ़ती जा रही है, पानी औरतों से दूर होता जा रहा है। और बहुत सुंदर अलग अलग इलाकों के उदाहरण आए हैं जो मुझे लगता है कि वो सच में एक हमारी आगे की परियोजना में काम आ सकते हैं कि हम कैसे सरकार को इन चीजों के उदाहरण देकर कहें कि ये संभव है। इन सारी जिम्मेदारियों का 15-16 घंटों का काम और उनके जीवन पर बहुत नकारात्मक असर डालता है। दर्दनाक शारीरिक श्रम, काम पूरा करने का तनाव, पानी नहीं मिलने का दबाव, इससे जो औरतों की जिंदगी पे असर होता है कि वो मजदूरी के अवसरों को खो देती हैं, लड़कियां शिक्षा से वंचित हो जाती हैं और उनके ज्ञान और जानकारी के दायरे और जीवन कौशल सीमित हो जाते हैं। पर इन सारी परिस्थितियों के बावजूद बहुत सराहनीय काम अभी आपने प्रेजेंट देखा है। करीब करोड़ों परिवार में औरतें हर रोज पानी की लड़ाई से दिन शुरुआत करती हैं। मैं दिल्ली में जब रहती थी और 3 बजे 2:30 बजे पानी आता था और 60-70 परिवार की औरतें गाड़ियां लेके खड़ी होती थी और सबसे खराब लड़ाई औरतों की उस लाइन में होती थी। तो मुझे लगता है कि जहाँ सॉलिडारिटी का प्रश्न है वो एक पानी के मुद्दे पे किस तरह से टूट जाता है औरतों के बीच, क्योंकि सबको पानी पे और सबकी सुरक्षित पानी तक पहुंच, ये हमारा एक नारा होना चाहिए कि हर परिवार को, हर घर को एक सुरक्षित पानी मिले। अब मेरा ये कहना है कि सदियों से चली पितृसत्तात्मक विचारधारा के अंतर्गत संस्थागत नियम, मापदंड, प्रथाएं, कामकाज और लिंग के आधार पर काम का बंटवारा होता रहा है। मेरा एक कड़वा कठिन सवाल आप सबके सामने है कि ये काम सिर्फ औरत के बदन पर किसने तय किया? ये सारा काम औरतें करेंगी और पानी का काम सिर्फ औरतें और लड़कियां करेंगी। तो एक तो ये तय हो गया कि औरतों का काम है जो बढ़ता चला जा रहा है औरत की शरीर पे। और दूसरा एक सवाल है कि इस काम को मूल्यहीन किसने घोषित कर दिया कि इसका कोई मूल्य नहीं होगा, घर का काम परिवार का काम होगा। इस सब के ऊपर हमें सवाल उठाने चाहिए और नई नीतियों में हमें ये जरूर तय करना चाहिए कि ये जो लिंग आधारित काम का पूरा बोझ औरत की कंधे पर, औरत की बाजू पर है, उसको हम कैसे काम करें और उसमें भागीदारी को कैसे बढ़ाएं। तो मेरा अभी ये बात नहीं करना चाहती कि हम क्यों ये सारा काम हम पे छोड़ रहे हैं, तो उसको अगर हम नहीं उठाते तो, क्योंकि पानी सिर्फ औरत नहीं पीती, पानी पूरी दुनिया पीती है। और स्वच्छ पानी की जो बात है, मुझे रोटी कपड़ा मकान के सवाल के साथ साथ ये भी लगता है कि पानी एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए हर इंसान के लिए, सिर्फ औरत के लिए। वंदना शिवा ने भी कभी बात, आप जानते हैं सब लोग की विकास की सारी अवधारणाएं, पर्यावरण विरोधी नीतियां और औरत और पानी, इनको सबको अलग करके नहीं देखा जा सकता। पानी की जो ये किल्लत है, पानी की जो परेशानी है, इसमें बहुत सारे मुद्दों को जोड़ना पड़ेगा। प्रकृति और जगत का गहरा रिश्ता है। जब प्रकृति की सांस उखड़ती है तो उसका सीधा असर औरतों की सांसों पर पड़ता है। विकास की मुख्य अवधारणा क्यों प्रकृति और पर्यावरण को सर्वोपरि नहीं मानते, उसको केंद्र बिंदु में क्यों नहीं स्थान दिया जाता हमारे पूरे नीति में, पॉलिसीज में, इसका प्रश्न बहुत जरूरी है। आपने मुझे बात करी थी कि हमारे यहाँ झरनों की छांव की बात है। हिमालय और पर्वतीय अंचल में झरने पानी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और हमने कोशिश की है इनको बचाने के लिए। मैं उसके उदाहरण पर नहीं जाऊंगी, बहुत ज्यादा बढ़िया उदाहरण आए। तो अनुमान है कि देश में करीब 50 लाख झरनों की गिनती है और उनमें से 30 लाख झरने हिमालय पर्वतों की नसों में बहते हैं। मैं जल्दी खत्म करूंगी। झरनों की मैपिंग होनी चाहिए, इन स्रोतों की मैपिंग होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हम विनाश कितना कर रहे हैं और बचाव कितना कर रहे हैं। हम एक एक उदाहरण देके बचाव का सच में ये नहीं कह सकते कि ये पूरे समाज में हम लागू कर पा रहे। मैं जब दिल्ली से जाती थी बस में तो ड्राइवर हम सारे उतर जाते थे 2-3 घंटे में, क्योंकि झरना था सामने। हम जाके उस झरने का पानी पीते थे, मुँह हाथ धोते थे और बोतलों में पानी भर के फिर बस में आते। आज वो झरने नजर नहीं आ सकते क्योंकि 4 लेन की जो पूरी व्यवस्था
पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, और टनल बने हैं, सुरंगें बनी है और बड़े बड़े ब्रिज बने हैं। उन्होंने इस पानी के स्रोतों को निकल लिया है और हमें समझना पड़ेगा कि हम अगर चुपचाप रहे, पर हमारे बहुत ही नाजुक और संवेदनशील इलाके हैं हमारे, जो समस्याएं राजस्थान में है, जो गुजरात में है, जो हिमाचल में है, जो आसाम में, वो सारी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। तो हमारी प्लानिंग उन भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर करनी पड़ेगी। समुद्र का पानी अगर अंदर आ रहा है तो महिलाएं कैसे उसको सच में उस पर रोकथाम की कैसे व्यवस्था करें, बहुत सराहनीय है। पर कई जगह पे दूसरे होते हैं। तो हिमाचल में जैसे बहुत तरह के सुन रहे हैं, राजस्थान में बहुत बढ़िया प्रयास हुए हैं पानी को बचाने के, इकट्ठा करने के। अब जो हो रहा है, हजारों प्राइवेट कंपनियों ने पानी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हर साल हम जंगलों का जलना देखते हैं। आभा जी निवेदन है 2 मिनट में प्लीज आप कंक्लूड कर सकती हैं मैम, हम लोग सेशन से काफी आगे निकल चुके हैं जी। ठीक है, तो मेरे अंत में 3 सुझाव हैं। औरतों पर पानी की जिम्मेदारी कम करनी होगी, लड़कों और पुरुषों को साथ साझा काम करने की जरूरत मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। साथ ही पर्यावरण नीतियों में औरतों की निर्णय प्रक्रिया की भागीदारी को बहुत जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करना होगा कि औरतों पे सिर्फ पानी लाने का बोझा नहीं है, पानी के लिए जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें उनकी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा सुझाव है कि पानी के मुद्दे को पूरे भौगोलिक और पर्यावरण के संदर्भ में देखना होगा और एक राष्ट्रीय नीति के साथ साथ प्रांतों की नीति तय करनी पड़ेगी और उसमें महिलाओं की पूरी जानकारी, उनकी समझ, उनके श्रम का मुद्दा और उनकी थकान, ये सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ताकि ज्वाइंट कमिटीज बने और जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमिटीज बने और उसमें सीमांतीय समुदाय की महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मेरा तीसरा सुझाव है कि हर एक ट्राइब्यूनल जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा संबंधित मामलों को निपटाने के लिए बनाई गई एक विशेष निकाय को गठन किया जाए। हमारी सरकारें बड़े पैमाने पर कार्यान्वित कर रही है विकास योजनाओं को और ज्यादातर ये कहती है कि इससे प्रगति होगी, इससे मूलभूत बुनियादी ढांचों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक लाभ होगा। सवाल है कि किसको होगा, किसके कंधों पर होगा। तो इन विकास योजनाओं के और पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, जो गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं, विनाश की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस सब विरोधाभास को हमें समझना पड़ेगा। हमें विकास की पूरी जो सोच है उसको पूरी तरह से चुनौती देनी होगी और ये महिलाएं दे रही हैं, ये बता रही हैं कि किस तरह से काम किया जा सकता है। और जो हमारे पूरे विकास के नाम पे हमने तो जो अभी पूरा हिमाचल में देखा है कि कितनी तबाही हुई है और वो चल रही है अभी भी, और पूरे जो बांध टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, नदियां बह गई हैं और बहुत क्षति हुई है, वो तभी रुक सकती है जब हम नदियों पर बने बांधों पे जो कब्जे हुए उनको छोड़ें और एक विकास के नाम पे पर्यावरण तो हमला जो हो रहा है, जंगलों पर जो कब्जा हो रहा है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी को हम सरकार और समाज के सामने रखें। मुझे लगता है कि समय नहीं है तो मैं किसी को यही रोक देती हूँ। जो विकास की अवधारणा है और जो महिलाओं की समस्या है, उन दोनों में बहुत बड़ा जोड़ है। हमें विकास को सतत और विकास की ओर लाना होगा और तभी हम पानी को बचा पाएंगे और औरतों की श्रम को थोड़ा कम कर पाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और साथ में गवर्नेंस की जरूरत की बात की और उसमें महिलाओं का बहुत अहम स्थान बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही करना चाहूँगा कि जैसे आभा जी ने कहा कि महिलाओं की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो, क्षमा कीजिएगा आभा जी, मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग जो उम्दा काम करती हैं, ये एक जो सोए हुए पितृ समाज को चुनौती है और ये चुनौती बनी रहना चाहिए। आपके अच्छे काम हम सबको चुनौती देना चाहिए कि हम सब अच्छा काम करें, क्योंकि आप इतना अच्छा काम करती है तो बाकी जो सोए हुए लोग हैं वो भी जगह आपके जैसे ही वो गवर्नेंस के अंदर जुड़े, सुशासन में जुड़े और सबको पानी मिले, अच्छे स्वास्थ्य। मेरा सिर्फ ये कहना है आपको कि पुरुषों को जोड़ना बहुत आवश्यक है।
Yes. कि सिर्फ महिलाओं का ये काम ना हो, क्योंकि इनका पूरा जीवन उसमें लग जाता है। तो ये नहीं है कि ये नहीं करें, पर साथ साथ पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। एग्री। वो हमारा साथ साथ दो पहिए हम अलग नहीं हो सकते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, अगर आयोजक अगर आप मंजूरी देते हैं तो एक आध सवाल ले, अदरवाइज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि समय से बाहर निकल गए, एक आध कोई सवाल किसी का कोई ले सकते हैं। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन को आप लोगों ने बड़े तल्लीनता से सुना, बहुत इंगेज थे आप, इन्वॉल्व थे। थोड़ा समय से भी हम लोग बाहर चले गए, लेकिन फिर भी आपने धीरज बनाए रखा और सभी को मौका मिला। हिमाचल से लेके राजस्थान से गुजरात, तो मतलब हिमालय से लेके समुद्र तक को हमने पूरा माप दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा हमारी जो दीदियाँ यहाँ पर बैठी हुई है, आभा जी का और हंसा बेन का, थैंक यू सो मच।